Hello everyone. We are doing chapter number 9, Biomolecules. This is the second video of the chapter, class 11th, Biology. In this video, we are going to cover the following topics. We will study about the proteins, polysaccharides, nucleic acids and metabolism. Biomacromolecules. You know what are biomacromolecules? These are the biomolecules having molecular weight more than 1000 dalton, and they are present in acid insoluble pool, or you can say retentate. These biomacromolecules are mostly polymers. There are two types of polymers, homopolymers and heteropolymers. Homopolymers are those which have got one type of monomer repeating units. Example आपके सामने है, ग्लूकोज की चेन है, monomer glucose है and chain of glucose is formed. This is a homopolymer. Heteropolymer is a chain of different monomer. आपके सामने डायग्राम है, amino acid 1, amino acid 2 is attached with amino acid 3, amino acid 3 is attached with amino acid 4. Like this, a chain of amino acids is formed. But all these amino acids are different and forming the chain. This is the heteropolymer. So let us start with proteins. Proteins are heteropolymer of amino acids. Total amino acids 20 हैं. Combinations of amino acids, they form different proteins. So proteins are heteropolymers. They are the chain of different amino acids. Second character है, they are polypeptides. Poly means many. Peptide is a bond. Linear chain of amino acids linked by peptide bond. कैसे बनती है ये peptide bond? Diagram देखिए नीचे. Peptide bond is formed when COOH group of one amino acid, number 1 amino acid का COOH group, reacts with NH2 group of next amino acid and release water. Water release हो रहा है and the bond is formed between the one amino acid and the second amino acid, CO-NH. This is the peptide bond. So proteins are polypeptides. Let us see the functions of proteins. They are useful for us in growth and tissue repair. Second, they help in transport of nutrients across the cell membrane. Example है GLUT4, जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस. थर्ड, दे एक्ट एज इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, कोलेजन. सेल्स के बीच में ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है कोलेजन वो बनाता है. नेक्स्ट, दे एक्ट एज एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज वो प्रोटीन्स हैं जो डिजीज जर्म से फाइट करती हैं. दे एक्ट एज रिसेप्टर्स. दे रिसीव द सिग्नल्स लाइक स्मेल, टेस्ट एक्सेट्रा. Some of them are hormones like insulin, some are enzymes like trypsin, some are pigments like hemoglobin. So proteins are very much useful for us. Most abundant protein in animal world is collagen, and most abundant protein in the biosphere, total biosphere, is rubisco, ribulose biphosphate carboxylase oxygenase. This is an enzyme. This is the most abundant protein in the biosphere. Now let us study the structure of protein. Structure level, 4 structural level हैं proteins के. Primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure. Primary structure, ये simple chain of amino acid है और amino acid की position हमें clear cut पता चलता है कौन सा amino acid कहाँ पर chain में लगा हुआ है. It describes the sequence of amino acid. किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड अरेंज है. ओके, लेफ्ट हैंड साइड का जो एंड है इट कंटेन्स फर्स्ट अमीनो एसिड एंड इट इज कॉल्ड एन टर्मिनल अमीनो एसिड. यू कैन सी द डायग्राम. एन टर्मिनल इज रिटन. NH3+ जहां पर है वो एन टर्मिनल है एंड COO- जहां पर है दिस इज द सी टर्मिनल. इट इज इन द राइट हैंड साइड. लास्ट अमीनो एसिड इज अटैच्ड हेयर. Come to the secondary structure. A protein thread does not exist as a rigid rod. ऐसा नहीं है कि प्रोटीन एक सिंपल रॉड की फॉर्म में प्रेजेंट है, एक थ्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट है. नो, इट इज फोल्डेड.
इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स बना हुआ है आपके सामने, अल्फा हेलिक्स, ग्रीन कलर से, डार्क ग्रीन कलर से, सिमिलर टू स्टेयरकेस। और ये किस फैशन पे अरेंज होता है? इन प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिसेस आर ऑब्जर्व्ड। दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कम टू द टर्शरी स्ट्रक्चर। जो हेलिकल पेप्टाइड चेन है वो फर्दर फोल्ड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हॉलो वूलन बॉल। एक तरीके का बॉल है ये। 3D डायमेंशन हमको दिखाई देती हैं, 3D व्यू हमें दिखाई देता है। ओके, डायग्राम देखिए, टर्शरी स्ट्रक्चर बना हुआ है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर फोल्ड होकर एक बॉल बना देता है। एंड टर्शरी स्ट्रक्चर इज नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन्स लाइक मायोग्लोबिन, एंजाइम्स एक्सेट्रा। दे आर टर्शरी स्ट्रक्चर्स। कम टू क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। When more than one polypeptide chain, जब एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में कंबाइन हो जाती हैं, दे फॉर्म द टर्शरी स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन में देखिए 4 सब यूनिट्स हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हैं जो आपस में ज्वाइन हो गई हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। दिस इज द क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। So at a glance you can see primary structure, chain of amino acid, secondary structure in the form of helix or in the form of plate also, in the form of sheet also, tertiary structure वुलन बॉल की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में असेंबल्ड सब यूनिट्स हैं, 4 सब यूनिट्स आर कंबाइंड टुगेदर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कम टू पॉलीसेकेराइड्स। दीज आर पॉलीमर्स ऑफ शुगर। शुगर्स मोनोसेकेराइड्स हैं। ओके, एग्जाम्पल्स स्टार्च होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, सेलुलोज होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, glycogen homopolymer of glucose. Starch and cellulose they are present in the plants. सेल वॉल में सेलुलोज होता है, स्टार्च फूड की फॉर्म में स्टोर रहता है प्लांट्स के अंदर, ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन द एनिमल्स, एंड इंसुलिन इज अ होमोपॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। तो डिफरेंस क्या है इन तीनों में? इनके अरेंजमेंट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज किस तरह से अरेंज है, इट इज डिफरेंट इन दीज 3 टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। How one glucose is attached with the second glucose? By the glycosidic bond. यहाँ पर आपके सामने 2 ग्लूकोज हैं। ओके, फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज एंड 4th कार्बन एटम ऑफ द सेकेंड ग्लूकोज, दोनों का जो OH ग्रुप है ये आपस में इकट्ठा होगा और वाटर रिलीज हो जाएगा एंड बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन द 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। सी द बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज देयर। ऊपर भी देख लीजिए डायग्राम, फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज एंड 4th कार्बन एटम ऑफ द सेकेंड मॉलिक्यूल, दे कंबाइन टू फॉर्म द बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 1,4 लिंकेज है ये। ओके, सो इट इज द बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड्स आर लिंक्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स बाय डिहाइड्रेशन। वाटर रिलीज हो रहा है, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर का रिलीज हो जाना। दिस इज हाउ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। यहां पर भी आपके सामने डायग्राम है, लिंकेज बना हुआ है, 1,4 लिंकेज इज देयर। ओके, सो दिस इज अ डाइसेकेराइड। जब 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दिस इज द डाइसेकेराइड। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर देखें तो ग्लूकोज की चेन है, सेंटर में आप देखिए एक चेन है और साइड में बहुत सारी ब्रांचेस आ रही हैं। सो इट इज अ ब्रांच्ड, ग्लूकोज इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस। कैसे बन रही हैं ब्रांचेस? जो लीनियर सेंट्रल लाइन है ग्लूकोज की अरेंज लाइन है, इट इज फॉर्म्ड बाय 1,4 लिंकेज। डायग्राम देखिए, अल्फा 1,4 लिंकेज, सेंटर की लाइन बना रहे हैं और साइड ब्रांचेस बनाने के लिए देयर इज अ लिंकेज बिटवीन द 1 कार्बन एटम एंड द 6th कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम ऑफ 1 glucose and 6th कार्बन एटम ऑफ द सेकेंड ग्लूकोज। दिस इज अल्फा 1,6 लिंकेज। ये साइड ब्रांचेस बनाते हैं। So this is how the glycogen is formed. Starch, स्टार्च सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जिसमें हेलिक्स बना हुआ है एंड इट कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन गिवन ब्लू कलर। ब्लू कलर क्यों देता है ये आयोडीन के साथ? क्योंकि आयोडीन के मॉलिक्यूल को ये होल्ड कर लेता है अपने हेलिक्स में। डायग्राम देखिए नीचे, ग्लास के अंदर राइस वाटर है, इसमें आयोडीन की ड्रॉप डालिए। इफ इट टर्न्स ब्लू ब्लैक इट मीन्स राइस कंटेन्स स्टार्च। नेक्स्ट देखिए पोटैटो,
पोटैटो पर आयोडीन की ड्रॉप्स डाला जा रहा है और इट टर्न्स ब्लू ब्लैक, मीन्स पोटैटो ऑल्सो कंटेन स्टार्च। सेलुलोज में हेलिक्स नहीं होते, इसलिए ये आयोडीन के साथ कलर नहीं देता। सेलुलोज हैज नो कॉम्प्लेक्स हेलिक्सेस एंड देयरफॉर कैन नॉट होल्ड आयोडीन। क्लियर? There are complex polysaccharides also formed by amino sugar. Example क्या है? ग्लूकोजामीन एंड N-acetyl galactosamine. काइटिन एक होमोपॉलीमर है जो किससे बना हुआ है? N-acetyl ग्लूकोजामीन से बना हुआ है और ये कहाँ मिलता है? एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स का जो आउटर स्केलेटन होता है और फंगस की सेल वॉल में ये काइटिन मिलता है हमें। Come to nucleic acid, DNA and RNA. Nucleic acids are heteropolymer of nucleotides. Okay, many nucleotides they link together to form polynucleotide chain. Let us see the structure. Nucleic acid दो तरीके के हैं, DNA and RNA. DNA is deoxyribonucleic acid, RNA is ribonucleic acid. दोनों में शुगर डिफरेंट है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर है और आरएनए में राइबोज शुगर है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, दो हेलिक्स के बना होता है ये, और दोनों हेलिक्स एक दूसरे के एंटी पैरेलली अरेंज होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? अगर वन स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड की तरफ जा रहा है तो दूसरा स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ जाएगा। सीधा डायग्राम। सो डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 polynucleotide strands arranged anti-parallelly as a double helix. Next, in a DNA nucleotide is present. ये क्लियर है। न्यूक्लियोटाइड होता क्या है? 3 चीजों से मिलकर बना है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए, बैकबोन। कम टू द बैकबोन। डीएनए डबल हेलिक्स है तो बैकबोन क्या है इसकी? डीएनए की 1 and 2 दोनों साइड पर बैकबोन है एंड इट इज मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर, लाइक दिस इज द बैकबोन। सो बैकबोन ऑफ डीएनए इज फॉर्म्ड बाय शुगर फॉस्फेट शुगर चेन। दोनों साइड है ये। सेंटर में स्टेप्स हैं एंड स्टेप्स किस चीज के बने होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस के। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बेसिस, एडेनिन, ग्यूएनिन, थायमिन एंड साइटोसिन। यूरेसिल डीएनए में नहीं होता। किस तरह से ये अरेंज हैं ये बेसिस? देखिए सेंटर में बॉन्ड्स देखिए कौन कौन सी बॉन्ड्स हैं इसमें। एडेनिन पेयर्स विथ थायमिन, एडेनिन प्यूरिन है, थायमिन पिरिमिडिन है। प्यूरिन ऑलवेज कंबाइंड विथ पिरिमिडिन और दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ग्यूएनिन कंबाइंस विथ साइटोसिन, ग्यूएनिन प्यूरिन बेस है, साइटोसिन पिरिमिडिन बेस है और दोनों के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। सो बेसिस दे कंबाइन टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दिस इज द नंबर 1 बॉन्ड। सेकेंड बॉन्ड इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कैसे बनती है ये बॉन्ड? अ फॉस्फेट मॉलिक्यूल लिंक्स द 3 प्राइम कार्बन of the sugar of one nucleotide to the 5 carbon of the sugar of the next nucleotide. 2 न्यूक्लियोटाइड है, एक ऊपर है और एक नीचे है। एक का 3rd कार्बन एटम और एक का 5th कार्बन एटम, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाते हैं। दिस इज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कैसे बन रहा है ये बॉन्ड? देखिए ए पॉइंट पर देखिए, यहां पर बॉन्ड बन रहा है फॉस्फेट और शुगर के बीच में एंड दिस इज द एस्टर बॉन्ड। और डायग्राम नंबर बी में देखिए, यहां पर दोनों साइड पर एस्टर बॉन्ड्स हैं। एज देयर इज वन सच एस्टर बॉन्ड ऑन ईदर साइड, इट इज कॉल्ड एज phosphodiester bond. So this is the bond number 2 which is present in DNA. Bond number 3 is N-glycosidic bond. It is found between the sugar and the nitrogen bases. So these are the 3 types of bonds which are present in the DNA. Now come to the helical structure. इसका देखिए, it is there are turns in the double helical structure. और एक टर्न में 1 full turn contain 10 base pair, 10 steps are there. और लेंथ कितना है फुल टर्न का? 3.4 नैनोमीटर।
डायग्राम में भी देख सकते हो और लिखा भी है। तो दो बेसिस के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ, 0.34 नैनोमीटर, क्योंकि 10 बेसिस हैं, 10 बेस पेयर्स हैं एक टर्न के अंदर। और एट ईच स्टेप स्ट्रैंड कितना टर्न कर जाता है, 36 डिग्री, और एक पूरा फुल टर्न के बाद 360 डिग्री वो पूरा टर्न कर जाता है डीएनए का स्ट्रैंड। क्लियर? कम टू द मेटाबॉलिज्म। All the biochemical reaction taking place inside the living organism are metabolism, metabolic reactions और metabolism. For example, जितनी भी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, दे आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिक रिएक्शंस और मेटाबॉलिज्म। जैसे कि एग्जांपल है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एमिनो एसिड, एमिनो एसिड्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देना एंड एमीन बन जाना। रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप इन अ न्यूक्लियोटाइड बेस, न्यूक्लियोटाइड बेस में से एमिनो ग्रुप का निकल जाना। हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स का ब्रेक हो जाना। ये सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, दे आर ऑल मेटाबॉलिज्म। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एनाबॉलिक रिएक्शंस और कैटाबॉलिक रिएक्शंस, और एनाबॉलिक पाथवेज एंड कैटाबॉलिक पाथवेज। एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या हैं? यहाँ पर सिंपलर मॉलिक्यूल्स दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर स्ट्रक्चर। डायग्राम देखिए, एनर्जी यूज करके सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक बिग मॉलिक्यूल बना रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी यूज हो रही है। दिस इज द एनाबॉलिक रिएक्शन एंड द पाथवेज आर कॉल्ड एज एनाबॉलिक पाथवेज। एग्जाम्पल क्या है? एसिटिक एसिड इज कन्वर्टिंग इनटू कोलेस्ट्रॉल, एमिनो एसिड्स कन्वर्टिंग इनटू प्रोटीन और द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सारे एनाबॉलिक पाथवेज हैं जहां पर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर बिगर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या हैं? दीज आर द रिएक्शंस इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल टूट जाता है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाता है, और इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। एग्जाम्पल, ग्लूकोज इज कन्वर्टिंग इनटू लैक्टिक एसिड, प्रोसेस पूरा पाथवे को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। रेस्पिरेशन भी कैटाबॉलिक पाथवे है। जब कैटाबॉलिज्म होता है या कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, एडेनिन, शुगर एंड 3 फॉस्फेट, और तीनों फॉस्फेट्स के बीच में जो बॉन्ड्स हैं उस बॉन्ड्स के अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और हम इस एनर्जी को अपने डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज करते हैं। Okay, what are metabolites? The intermediate products of metabolic reactions, metabolic reactions के बीच में जो प्रोडक्ट बनते हैं, they are called as metabolites. और flow of metabolites in metabolic pathway has a definite rate and direction. किस तरह से ये फ्लो करते हैं मेटाबोलाइट्स मेटाबॉलिक पाथवे में? इनका एक डेफिनेट रेट है और डेफिनेट डायरेक्शन है, लाइक एन ऑटोमोबाइल ट्रैफिक। दिस मेटाबोलाइट फ्लो, इस फ्लो को क्या कहते हैं? डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। देर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन से हैं? जिनका डेफिनेट फंक्शन है हमारी बॉडी में, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर, और ज़रूरी है लाइफ के लिए हमारे। एग्जाम्पल, एमिनो एसिड्स, शुगर, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, विटामिन एक्सेट्रा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है? दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन। डायरेक्टली ये इन्वॉल्व नहीं है, ना ग्रोथ में, ना डेवलपमेंट में, ना रिप्रोडक्शन में। एंड कहाँ मिलते हैं ये? प्लांट्स, फंगल और माइक्रोबियल सेल्स के अंदर। एग्जाम्पल्स हैं एल्कलॉइड्स, पिगमेंट्स, टर्पेनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल्स, टॉक्सिन्स, लेक्टिन्स एंड ड्रग्स। You can see some examples of secondary metabolites here. Pigments, कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसायनिन्स, ये प्लांट्स में से और फ्रूट्स में से मिलते हैं हमें। एल्कलॉइड्स, मॉर्फिन एंड कोडीन, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम। आप डायग्राम देख सकते हो, पिक्चर्स देख सकते हो, आपके सामने है। टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स, ये देखिए यूकलिप्टस ऑयल, सिनेमॉन, ये सब, इनमें बहुत अच्छा फ्लेवर और एरोमा होता है। ओके, एसेंशियल ऑयल्स आर ऑब्टेन, लाइक एग्जांपल है लेमन ग्रास ऑयल, पिक्चर इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। टॉक्सिन्स, कौन से टॉक्सिन्स हैं? एब्रिन एंड राइसिन। एब्रिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रोजरी पी एंड राइसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम कैस्टर। ओके, लैक्टिन्स आर देयर,
कॉन्केन एवेलिन ए, जो कि जैक बीन से मिलता है, डायग्राम आपके सामने है, पिक्चर आपके सामने है, लेक्टिन्स जहां से मिलता है हमें। ड्रग्स, विनब्लास्टीन एंड कुरकुमिन, देखिए कहाँ से मिल रहा है ये हमें, विंका रोजिया से विनब्लास्टीन मिल रहा है और कुरकुमिन मिल रहा है टर्मरिक से। लास्ट, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस लाइक रबर, गम्स, सेलुलोज, आपके सामने डायग्राम है, रबर प्लांट वगैरह से मिलता है ये सब चीज़ें। सो दीज आर द सम secondary metabolites, names of some secondary metabolites, you have to learn them thoroughly. So that's all for today. Do the test given in the box in the form of MCQ. Subscribe the channel for getting the information about my new video. Thank you very much for staying with me.